हाँ बेटा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपना चैप्टर पर कंटिन्यू किए थे नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग तक पढ़ लिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे हम लोगों को कंटिन्यू करना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के आगे क्या हुआ। तो बच्चों, मैंने बता दिया था कि सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की स्टार्टिंग गांधी जी ने दांडी मार्च से किया था। दांडी मार्च, यू नो दैट इन गुजरात आफ्टर जब कांग्रेस ने बच्चों पूर्ण स्वराज की डिमांड किया लाहौर सेशन में 1929 में, तो उस डिमांड के बाद दोनों ग्रुप के बीच, ब्रिटिशर्स एंड इंडियन के बीच एक कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हुई। उस कंट्रोवर्सीज को गांधी जी ने देखा कि ये कंट्रोवर्सीज कभी भी वायलेंस में कन्वर्ट हो सकती है, बिकॉज कांग्रेस हैज स्टार्टेड टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे एंड एज यू नो दैट ऑन 26 जनवरी 1930 में फर्स्ट टाइम्स ऑफ द इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड। दैट्स व्हाई the main motto of this celebration of the Independence Day, starting of the rally, organization of the rallies, Prabhat Ferries, वगैरह. That's why Britishers Gandhi ji know that controversies can be possible, could be possible between Britishers and Indians. That's why he said that now time has come to start a new movement, and Gandhi ji decided to start the civil disobedience movement in 1930. तो इस तरीके से बच्चों गांधी जी called a meeting in Sabarmati Ashram, where he selected 78 most dedicated volunteers, and he decided that I will make a journey from Dandi to from Sabarmati to Dandi, approx 240 miles on feet, and I will broke the law of the salt march there. I have told you that why Gandhi ji has accepted the salt as a powerful symbol of the civil disobedience movement, because it is very basic necessary for every person, and every person have to use the salt. But at that time the manufacturing of the salt was monopoly British government, and only British government can manufacture the salt, and by applying the heavy taxes it was sold in the market in very high prices. That's why public were not supporting to this monopoly. So Gandhi ji has decided that I will in civil disobedience movement I will break the law, and by manufacturing the salt by my own self. And he started his journey from the Sabarmati for the Dandi, and every day he covered approx 10 miles, and where he was going to end his journey, there was a meetings and there was a sabha where a large number of the people of the nearby villages and cities were gathering to hear Mahatma Gandhi. And it being said that चल पड़े जिधर दो पग चल पड़ा उधर सारा जग, ऐसा करके कहा जाता है। तो उसी इंसिडेंट के बारे में ही ये कहा जाता है कि जिधर दो पग चल पड़े उधर सारा जग चल पड़ा। जो Gandhi ji was covering every day approx 10 miles, and in this way in 24 days he has covered 40 miles, and by starting his journey from 12 March 1930 he reached to the Dandi on 6 April 1930, and manufactured the salt by the sea waters and has broken the law of the British government. This was the starting of the civil disobedience movement. बच्चों मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, इसका मेन पर्पज है क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ये कोई रेगुलर क्लास नहीं है। दैट्स व्हाई माय स्पीड इज फास्ट। तो आई हैव टोल्ड यू दैट बाय मैन्युफैक्चरिंग द साल्ट इन द Dandi, he has started the salt march, he has started the civil disobedience movement, and slowly, although in starting Britishers were not taking the any strict action against the Gandhi ji, because they were thinking that this movement if were not supported, this moment it will not taken action any against it, then it will surely come to end. But when Gandhi ji decided to withdraw all the salt which was stored in the storerooms of the Dharsana, which was a very big storage of the salt. Then British government have to take the action, and they started to arrest all the top leaders of the Congress, and Gandhi ji was also arrested. But the moment has started, and the moment की पोजीशन ये थी बच्चों कि गांव में भी this moment has spread very much, and it was getting the support of the, because गांव की conditions मैंने बताया था, especially गुजरात में
एंड वहाँ पर क्या था कि बच्चों जो पट्टीदार थे गुजरात में, जैसे अपने यहाँ कुछ जमींदार टाइप के लोग होते तो पट्टीदार तालुकजात जो थे वो बच्चों देवर मतलब कलेक्टिंग द हैवी टैक्सेस टुवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम द farmers. That why the region farmers were very much angry and were supporting to the movement of Mahatma Gandhi. बच्चों अगर हम बिजनेस ग्रुप की बात करें तो बिजनेस ग्रुप में जब अगर हम कंपेयर करते हैं कि बिजनेस ग्रुप का क्या पार्टिसिपेशन था इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंपेरेटिवली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो बच्चों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बिजनेस ग्रुप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, क्योंकि उनको ऐसा डर था कि दिस विल क्रिएट या मतलब मूवमेंट विल क्रिएट मतलब एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देगा वेयर द मतलब कानून का नियम, कानून का राज, वी कैन से दैट लॉ ऑफ द मतलब स्टेट ऑफ द लॉ या ऑर्गेनाइज या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ विल कोलैप्स एंड उनकी प्रॉपर्टी खतरे में पड़ सकती है, देयर प्रॉपर्टी कैन कम इन कुड कम इन डेंजर. दैट्स व्हाई द रीजन दे वर नॉट सपोर्टिंग टू महात्मा गांधी इन द सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. बट द सक्सेस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज मोटिवेटेड टू द बिजनेस ग्रुप्स दैट सच टाइप ऑफ जो उनका डर था, ऐसी कोई कंडीशंस इज नॉट गोइंग टू स्प्रेड by the moment. That's why they in this moment in civil disobedience movement में they were supporting very much, and a large people, a large businessmen, large number of the businessmen like Jamnalal Bajaj, Vitthal Bhai Mehta and many others like Mehta and like G.D. Birla, Ambalal Sarabhai, ये सब लोग बच्चों कांग्रेस की मेंबरशिप को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था. एंड मेनी ऑफ देम हैज आल्सो कॉमर्शियल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया गया था. एंड इनमें से जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर खासकर नाम दिया जाता है. तो ये लोग बच्चों जो who has also joined the Congress directly, they were supporting directly to the movement, and who has not joined to the Congress, they were supporting to the Congress by providing the money for the different activities. तो इस तरीके से बच्चों ये मूवमेंट की ये पोजीशन थी कि it was supported by the farmers as well as the business groups also. बट इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा जाए बच्चों तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वाज नॉट मतलब इफेक्टिवली, although many of workers many industrial workers were supporting to the movement, but they were not supporting, but a large number of the workers were not supporting it also because there was a problems of them livelihood, and they were not agree to take the risk just like as a non-cooperation movement. तो इस तरीके से दिस वाज द सिचुएशंस ऑफ द वर्किंग क्लास, स्पेशली इंडस्ट्रियल वर्किंग, दैट दिस वाज देयर पोजीशन. आफ्टर दैट बच्चों जो हम लोग देखते हैं कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द वोमेन्स. समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द वोमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो बच्चों वोमेन्स का रोल वोमेन्स ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, एंड खासकर बाइकॉटिंग ऑफ द फॉरेन मटेरियल, स्पेशली देयर रोल इज नोन remembered picked up the लिक्वर शॉप्स. ठीक है, लिक्वर शॉप में बेटे तो गजब का उन्होंने परफॉर्मेंस किया था कि कैसे जो वाइन की शॉप है कैसे उनको बंद कराया जाए और कैसे उन्हें दूर किया, कैसे उनको मतलब उसके इविल्स को दूर किया जाए. तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, और बाइकॉटिंग ऑफ द फॉरेन मटेरियल में भी उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था बच्चों. तो दिस वाज द वोमेन्स मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ द वोमेन्स. खासकर आप याद रखिएगा बच्चों, पिकिंग ऑफ द या अपोज ऑफ द foreign materials, especially the oppose of the wine shop, which was greatly affecting and was destroying their family. एज यू नो तो पीने के बाद क्या होता है. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मतलब ये बच्चों सिचुएशन थी. एंड आफ्टर दिस सिचुएशंस हम देखते हैं बच्चों कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से फैला. ऑल्दो स्टार्टिंग में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर मेरे इस आइडिया से एग्री हो जाती है, मेरे 11 डिमांड से एग्री हो जाती है, तो दे विल नेवर हियर द नेम ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. बट एट दैट टाइम तो हु वाज लॉर्ड इरविन, Governor General of India या Viceroy of India also, तो he has completely rejected the proposal of the Mahatma Gandhi with the 11 demands. That's why Gandhi have now no way. That's why he had started to non-civil disobedience movement. And but when civil disobedience movement was in its peak position, at that time बच्चों महात्मा गांधी को ये इन्फॉर्म किया गया
कि आप वो क्या कहते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड की बात नहीं थी बेटे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, टुवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जब लॉर्ड इरविन को कहा गया कि एट एनी रेट महात्मा गांधी शुड पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1931, तो तब जाके लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी से मुलाकात करने के बाद ही सेड दैट टेल मी अबाउट योर 11 डिमांड्स, आई विल फुलफिल योर डिमांड्स, बट remember it that you have to withdraw the civil disobedience movement and would participate in the second round table conference. And Mahatma Gandhi has submitted the 11 demands, but it being said लोग क्रिटिसाइज करते हैं और मे भी पॉसिबल लोगों का क्रिटिसाइजेशन सही भी हो कि he has not given the demand of the suspension of the hanging of Bhagat Singh. He has not given this demand to, and although the hanging मतलब hangs of महात्मा गांधी जो भगत सिंह की फांसी लगभग डिसाइड की जा चुकी थी, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा जाता है कि ये डिमांड नहीं दिया कि आप भगत सिंह की फांसी को माफ़ करो, एंड तो इस तरीके से उनके ऊपर ब्लेम भी लगते हैं, ठीक है। तो उन्हें देना भी चाहिए, मेरा भी आइडिया यही है कि ही शुड उनको ये क्या कहते हैं ये डिमांड तो फोर्सफुली देना चाहिए, और इस डिमांड के लिए उन्हें रिजिट हो जाना चाहिए कि अगर आप मेरी इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते तो आई विल नॉट पार्टिसिपेट, आई विल नॉट विड्रॉ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड वुड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि तब तक बच्चों ब्रिटिशर्स में कमज़ोर हो चुके थे। गांधी जी वाज इन खुल के खेल रहे थे, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने एंड पे आ गया जब गांधी और वैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने चरम की तरफ ही बढ़ रहा था। इट वाज although a large number of the top leaders of Congress were arrested, but it was moving towards its peak point, but by the contact of the Gandhi Irwin, Mahatma Gandhi has withdrawn the civil disobedience movement, and has gone to participate in the second round table conference which was organized in London। and कहा जाता है कि कांग्रेस के बहुत टॉप मोस्ट लीडर वहाँ गए थे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंसी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि विद लार्ज नंबर ऑफ द कांग्रेस लीडर्स महात्मा गांधी आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये बच्चों क्या कहते हैं हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बातें हो गई। अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, मैंने पहले बताया था कि अगर आपको बहुत विस्तार में देखना है, बहुत विस्तार में समझना है, तो आप लोग मेरे इनिशियल वीडियोज़ देख लीजिए जा करके, आपको मेरे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो उन वीडियोज़ को जा करके देख लीजिएगा। अगर आपने लिंक बचा कर रखा होगा तो यू कैन सी द ऑल वीडियोज़ फ्रॉम देयर। तो लेकिन मैं अब आप लोगों को बातें कर रहा था कि व्हाट वाज द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बच्चों सबसे पहले हम बातें करेंगे लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बच्चों दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग्स कि महात्मा गांधी की नॉट लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉट पार्टिसिपेशन ऑफ द suppressed group ST and SC group was not supporting to the civil disobedience movement, which was a very large part of the society, but they were not supporting to the civil disobedience movement because why? Because in the leadership of the Mr. B.R. Ambedkar, Mr. Bhim Rao Ambedkar की leadership में they have started in the leadership of B.R. Ambedkar they had started the untouchable movement, and this was the demand of Mr. Ambedkar that we will not really get the freedoms after getting the freedom from the Britishers, because higher caste of society will capture to us and make most of the SC/ST as their slaves, then that will be very miserable condition as for us. So we are in the support of the separate electoral powers के support में है और हमें दिया जाना चाहिए। And this demand was also raised by B.R. Ambedkar in the second round table conference में भी उन्होंने इस डिमांड को जो अराइज किया था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरल पावर्स दिया जाना चाहिए। But Gandhiji was opposing to this demand because he was saying that Muslims has got the separate electoral powers by the Act of 1999, which was come to known as a Morale Minto Act. By that, Muslims community has got the separate electoral powers, and a large मतलब एक खाई बन गई थी बाकी लोगों के बीच में। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि दोनों ग्रुप मतलब SC/ST को भी दिया जाए ताकि SC और ST भी हमारी एक यूनिटी से दूर हो जाए। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अपोज किया और उन्होंने कहा नहीं, सेपरेट इलेक्टोरल पावर्स नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि अम्बेडकर जी इस बात के लिए एग्री नहीं थे। तब जाकर के महात्मा गांधी ने पूना में जाकर के भूख हड़ताल कर दिया अगेंस्ट द सेपरेट ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो चाहती कि ये लोग सोसाइटी डिवाइड हो जाए,
तो इस वजह से उन्होंने बेटे जो सेपरेट इलेक्टोरल पावर की बात तुरंत देने की बात कह दी। तब जाके महात्मा गांधी को बेटा भूख हड़ताल में बैठना पड़ा और उन्होंने तभी एक वर्ड डिजाइन किया था जिसे हरिजन कहा जाता है। मतलब ही सेड दैट दे विल नेवर आस्क्ड now upper class will never ask to them as a scheduled and scheduled tribes and scheduled caste, and they will now known as Harijan means son of the god. This was क्या कहते हैं। और इसके बाद बेटे गांधी जी के अम्बेडकर जी के साथ उन्होंने साइन किया और जिसे 1932 में साइन किया गया था, जिसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज पूना पैक्ट। तो आप लोगों को मैंने विस्तार से समझा दिया कि पूना पैक्ट क्या था। अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्टोरल पावर्स द मतलब पैक्ट वाज साइन बिटवीन महात्मा गांधी एंड अम्बेडकर बाय विच अम्बेडकर जी हैव टू सस्पेंड द डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरल पावर्स while Gandhi ji has promised to provide them the separate seats for the SC and ST communities। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका डिप्रेस क्लास मूवमेंट जो था दैट वाज स्टार्टेड बाय B.R. अम्बेडकर और उसका एंड बच्चों हुआ था बाय द पूना पैक्ट जब साइन किया गया तो तभी जाकर के उसका एंड हुआ। तो इस पहला लिमिटेशन यही आती है कि नॉट पार्टिसिपेशन ऑफ द SC एंड ST, और दूसरी लिमिटेशन बच्चों जो सामने आती है दैट वाज नॉट पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। मैं पहले इसको बता चुका हूँ कि भाई दे वर नॉट पार्टिसिपेशन। और तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है नॉट पार्टिसिपेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिकॉज तब तक बच्चों पाकिस्तान की डिमांड होने लगी थी और पाकिस्तान की डिमांड बहुत ज़ोरों से फैलने लगी थी। दैट्स व्हाई दे वर नॉट सपोर्टिंग टू द मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी एंड मेनी प्लेसेस देयर वाज ए कंटिन्यूअस वायलेंस बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स। क्या कहते हैं ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, एक लिमिटेशन थी ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बच्चों मैं आगे वीडियो में आप लोगों का टॉपिक यहीं से आगे बढ़ना बंद हो जाता है। मुझे कभी अगर स्कूल खुला टाइम मिला और स्कूल में मैंने रिवीजन क्लास लिया तो बच्चों मैं आप लोगों को श्योर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं से आपको आज़ादी तक ले चलूँगा और आज़ादी तक पाठ पढ़ाऊँगा कि आज़ादी तक कैसे छोटे थोड़े ही टाइम में ले चलूँगा, मतलब एक ही 2-3 दिन में ले चलूँगा, पढ़ा डालूँगा। वरना अभी तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी तो इम्पोर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस की जा सकती हैं और इसको आज़ादी तक ले जाने के लिए 2-3-4 घंटे चाहिए और विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी तो हमने 1915 से लेकर के 1932 तक का ही पढ़ा। अभी 1932 से 1947 तक का सफ़र काफ़ी लंबा है। तो अगले वीडियो में बेटे मैं आपको विजुअलाइजिंग द शेप भारत माता और बहुत शार्ट में आपको, क्योंकि अगर लॉन्ग में देखना है तो मैंने बताया कि मेरे वीडियोस पढ़े आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन भारत माता के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग बच्चों नेशनल सिम्बल्स लाइक तिरंगा, लाइक राष्ट्र मतलब जनगणमन, लाइक नेशनल सॉन्ग, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।